Hello children, welcome back to our class. In this video, I am starting this next poem number 3 of your book Gulmohar. This is Summer Sun. Poem name is Summer Sun. It is written by Robert Louis Stevenson. So children, in this poem, uh, first of all, I will read this poem. Great is the sun, and wide he goes through empty heaven with repose. And in the blue and glowing days, more thick than rain, he showers his rays. Though closer, still the blinds we pull to keep the shady parlor cool. Yet he find a chink or two to slip his golden fingers through the dusty attic spider clad. He through the keyhole makes glad, and through the broken edge of tiles into the laddered hayloft smiles. Meantime, his golden face around he bears to all the garden ground, and sheds a warm and glittering look among the ivy's inmost nook, above the hills, along the blue, round the bright air, with footing true, to please the child, to paint the rose, the gardener of the world he goes. So children, this is a poem, and first of all I will tell you about the poet Robert Louis Stevenson. He was a Scottish novelist. He was a poet. He was a essayist and travel writer. In this poem, the speaker describes different aspects of the sun's character. इस पोएम में स्पीकर ने सन के बारे में अलग अलग वे से एक्सप्लेन किया है, उसके कैरेक्टर के बारे में कई तरीके से बताया. When the sun travels across the sky every day, it is calm and composed. जब सन पूरे दिन हर दिन स्काई में ट्रैवल करता रहता है तो बहुत काम कंपोज होता है, बहुत ईजीली वो अपना वर्क करता रहता है. In summer, however, it grows brighter. It starts to grow mischievous. In summer में गर्मियों में जब वो ब्राइटर होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगती है, तो it starts to grow mischievous, यानी कि वो बहुत ज़्यादा तेज़ बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म हो जाता है, बहुत गर्मी देता है, क्योंकि वैसे भी इतना हॉट होता है समर सीज़न में, और बहुत ब्राइट सन की वजह से और ज़्यादा वो गर्मी देता है. इट stealthily enters through the blinds on the windows and warms up the room. और वो चुपचाप से हमारे घर की कर्टेन्स में, ब्लाइंड्स में, विंडोज़ से के थ्रू, कर्टेन्स के अंदर से भी, ब्लाइंड्स के अंदर से भी अंदर आ जाती है उसकी रेस, और हमारे रूम को वार्म कर देती है, गर्म कर देती है. इट्स रेस रीच एवरी डार्क एंड कोल्ड कॉर्नर एंड वार्म दैम. उसकी रेस हर गर्म और हर ठंडे कॉर्नर में पहुंच जाती है और हमारे रूम को, हमारे घर को गर्म कर देती हैं और लाइट से भर देती हैं. द सन स्प्रेड्स हैप्पीनेस एंड चीयर इवन व्हेन इट सेट्स डाउन. सन खुशियाँ, प्यार हर जगह बिखेरता है जबकि वो सेट डाउन, डूब रहा होता है. पेंटिंग द स्काई इन ब्यूटिफुल विविड शेड्स ऑफ रेड. कैसे? क्योंकि जब सन आता है, निकलता है सुबह, जब सन राइज़ होता है और जब सनसेट होता है शाम को,
दोनों टाइम पर आप स्काई में देखिए तो बहुत सारे डिफरेंट बहुत सारा रेड रेड कलर से शेडिंग हो रखी होती है, पेंटिंग हो रखी होती है स्काई में, ब्लू स्काई में. इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल. सो now I will tell you explain you stanza wise, one by one. So children, you all know without sun we cannot imagine our life, because like plants also need sunlight to grow na, and to make their food by the process of photosynthesis. You all know, I know this. In the same way, all living organisms need sunlight to grow. Sun rays reaches everywhere, you know ना, wherever it finds a place. जहाँ भी सन रेज को सन की किरणों को जगह मिलती है वो वहीं पहुँच जाते हैं. और जैसे कि हम सभी को जीने के लिए लाइफ के लिए, हमारी लाइफ के लिए जैसे प्लांट्स को ज़रूरत है, वो अपना खाना बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस और ग्रो करते हैं, ऐसे ही सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सनलाइट की नीड होती है, बिना उसके वो नहीं ग्रो कर पाते. सो फर्स्ट स्टैंजा इज, ग्रेट इज़ द सन एंड वाइड ही गोज थ्रू एम्प्टी हेवन विद रिपोज, एंड इन द ब्लू एंड ग्लोइंग डेज more thick than rain he showers his rays. Repose means a state of being calm, यानी कि बहुत साइलेंट मोड पे, बहुत आराम से, बिना किसी उथल पुथल के, परेशानी के, ईजी वे में. और showers his rays means shines very brightly, बहुत अच्छे से शाइन करना, बहुत ब्राइटली शाइन करना. So here sun is very big and wide, and it showers its rays continuously without taking any rest. You know, sun is very big and very wide, और जब बहुत बड़ा है और वो जब अपनी रेज़ को शावर्स करता है, मतलब हम लोगों को जब अपनी वो रेज़ को देता रहता है कंटिन्यूसली विदाउट टेकिंग एनी रेस्ट, वो हमको अपनी रेस पूरे टाइम देता है, वो कभी रेस्ट नहीं करता. स्काई बीइंग क्लियर विदाउट एनी ऑब्स्टिकल, सन रेज रीचेज एवरीवेयर एंड सन रेज आर थिकर देन द रेन ड्रॉप्स. और हमारी स्काई भी क्या होती है, बिना किसी ऑब्स्टिकल्स के सनरेज़, हमारी स्काई बिल्कुल क्लियर रहती है जब सनरेज़ होती हैं. जब सनरेज़ हर जगह फैलती है तो और तो स्काई बिल्कुल क्लियर होता है. एंड द सनरेज़ आर थिकर देन रेन ड्रॉप्स, और सनरेज़ रेन ड्रॉप से ज़्यादा थिकर होती है, ज़्यादा टाइम तक आती है, ज़्यादा अपनी ब्राइटनेस देती है. दो क्लोजर स्टिल द ब्लाइंड्स वी पुल टू कीप द शेडी पालक cool, yet he will find a chink or two to slip his golden fingers through. So meaning of blinds is screens for a window to shut the light out, or we can say curtains. Next, parlor means we can say drawing room. Chink, a very narrow crack or opening. छोटे छोटे क्रैक्स या कोई छोटे छोटे होल कहीं अगर है तो उसको हम चिंक बोलते हैं. सो इन दिस स्टैंजा क्या पोइट हमको समझा रहे हैं, even though we pull the curtains, we pull the blinds, then also the sun finds its ways to enter into the parlor, enter into the room. He slides his finger even through the hole also. Here his finger means what? Finger means its rays. पोइट यहाँ क्या समझा रहे हैं
चाहे हम कर्टेन्स डाल दें लेकिन, या ब्लाइंड्स लगा दें, कुछ भी कर दें, लेकिन क्या होता है, सन अपने अंदर आने का तरीका अपने आप ढूंढ लेता है और छोटे छोटे होल से भी वो अपनी रेज़ को अंदर एंटर कर देता है। छोटे छोटे कहीं होल हो रहे हैं तो वहाँ से भी सन रेज अंदर आने लगती है। द डस्टी एटिक स्पाइडर क्लैड, ही थ्रू द की होल मेक glad, and through the broken edge of tiles into the laddered hay loft smiles. In this stanza, the poet mean to say the sun find its ways through the keyhole, broken tiles, कहीं से भी वो अपनी रेज को अंदर आने के लिए फाइंड आउट कर लेता है, कैसे हम अंदर जाएं। कहीं छोटे छोटे होल भी हो रहे हैं तो वो अंदर चले जाते हैं उसमें से भी। एंड इवन मेक द स्पाइडर वेब विद डस्टी शाइन, और स्पाइडर की वो जो वेब्स होती हैं, जो जाल बना रखा होता है, उसको भी बहुत ज़्यादा शाइन करता है। अगर उस पर सनलाइट आती है तो वो भी बहुत ज़्यादा शाइन करने लगता है। एंड इट रीचेस एवरीवेयर, और सनलाइट कहीं भी पहुंच जाती है। सो नेक्स्ट स्टैंजा नाउ। Meantime his golden face around he bears to all the garden ground, and sheds a warm and glittering look among the ivy's inmost nook. What means bears? Means shows, and nook means corner. So in this stanza the poet mean to say, he wants to explain us that in between, कभी कभी बीच में ही शोज़ इज़ गोल्डन फेस मतलब बहुत चमकता हुआ सन निकलता है, बहुत ज़ोर से उसकी लाइट दिख रही होती है। वैसे तो रोज़ ही दिख रही होती है, बट कभी कभी एक अलग सी शाइन होती है उसका गोल्डन फेस। और ही शोज़ इज़ गोल्डन फेस टू द गार्डन ऑल्सो, अपना वो चेहरा गोल्डन फेस वो सब जगह दिखाता है, एंड गार्डन में भी दिखाता है ऑल्सो। एंड प्रोवाइड वार्मथ इट्स हीट, वार्मथ मीन्स इट्स हीट टू एवरीवेयर, और वो सब जगह अपनी गर्मी देता है। एंड द सन कुड रीच द हिडन कॉर्नर्स ऑल्सो, और सन जो छोटे छोटे कॉर्नर्स होते हैं ना, जैसे पेड़ लगा हुआ है तो उसमें कहीं छोटे छोटे होल भी हो रहे हैं तो वहाँ से भी सनलाइट आ जाती है। बहुत घना पेड़ है लेकिन उसमें ना कहीं कहीं से भी अगर लीव्स के बीच में से भी सनलाइट आ जाती है। तो वी कैन से हिडन कॉर्नर्स मीन्स लाइट कहीं भी पहुंच जाती है। जब सन इतनी तेज़ चलता है तो उसकी लाइट इतनी होती इतना तेज़ ब्राइट करता है, शाइन करता है, तो उसकी लाइट इतनी होती है कि आपके हिडन कॉर्नर्स जो होते हैं घर के बंद दरवाज़ों को, अगर आप उनमें भी दिन के समय रोशनी पहुंच जाती है। Above the hills, along the blue, round the bright air with footing true, to please the child, to paint the rose, the gardener of the world he goes. Here poet mean to say that the sun even reaches above the hills also, brighten up the sky with the air in a balanced way, means to be in a firm position of the feet, यानी कि here the sun, poet mean to say that sun reaches above the hills also, वहाँ पर hills पर भी पहुँच जाता है। और ब्राइटन अप द स्काई विद द एयर, और वहाँ की जो एयर होती है उसमें उसमें भी बहुत ज़्यादा वार्मथ कर देता है, हीट कर उसको भी गर्म कर देता है। मीन्स टू इन द एयर इन अ बैलेंस्ड वे, एयर और हीट मीन्स सनलाइट दोनों का ऐसा बैलेंस होता है, जैसे कि अगर हम कहीं खड़े हुए हैं तो हमारे दोनों फीट जब एक फर्म पोजीशन पे होते हैं, बैलेंस करे हुए होते हैं, उसी तरीके से वो भी बैलेंस बना करके हमको लाइट एंड हीट देता है। लाइक द गार्डनर,
Like the gardener takes care of the garden, in the same way sun also takes care of everything on the earth to please or to make everyone happy. जैसे कि गार्डनर पूरे गार्डन की केयर करता है, उसी तरीके से उसी सेम पोजीशन सेम वे में सन भी सभी चीज़ की केयर करता है अर्थ पर, सबको खुश करने के लिए और सबको हैप्पी करने के लिए. बिकॉज विदाउट सन वी कांट लिव, देयर इज़ नो लाइफ ऑन द अर्थ. तो इसके लिए हमें सनलाइट भी बहुत ज़रूरी है, सन की भी बहुत ज़रूरत है. अगर हम जीना चाहते हैं, हम लाइफ चाहते हैं अपनी अर्थ पर, तो सनलाइट भी बहुत ज़रूरी है. So I hope you understood this poem. Your question answers and exercises I will give you in the PDF only. So we will meet with the next chapter in my next video. Till then, bye.